شہزادے کی خواہش نے بادشاہ کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری سالگرہ کے تحفے کے طور پر بس میرا ایک مجسمہ بنوا دیجیے۔ شہزادے کے یہ الفاظ بادشاہ کے ذہن کے گوشوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس انوکھی تکلیف کو تو بادشاہ پہلے ہی سہ نہیں پا رہا تھا۔ 11 سالہ بیٹا جو کل ساری سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا، اپنے قدموں پر سر اٹھا کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑا عیب تھا۔ رعایا کے لوگ کیا سوچیں گے؟ دشمن تو ہمارے آنے والے بادشاہ پر ہنسیں گے۔ اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوگا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، جو تخت پر بیٹھا نہیں لڑکا ہوا ہوگا، جس کا سر اس کی کمر کی طرح جھکا ہوا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بادشاہ سلامت، میں نے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے کیا؟ شہزادے کی آواز نے بادشاہ کی خود کلامی میں مداخلت کی۔ بادشاہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ شہزادی کی خواہش پر وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمر خمیدہ بیٹے کے مجسمے کا تصور کر کے ہی اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ شہزادے کی خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادے کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کے لیے کہا، بہت خوب بیٹا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شاید تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینا چاہو گے۔ کہو تو تمہیں ایک عالیشان۔ مجھے صرف اپنا مجسمہ ہی چاہیے۔ شہزادے نے بادشاہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ملحقہ باغ میں لگایا جائے تاکہ میں صبح شام اس کو دیکھ سکوں۔ لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ کیا وہ میرے بیٹے کا تماشا نہیں بنائیں گے؟ بادشاہ کے دل میں وسوسوں کا شور تھا۔ اور ہاں بادشاہ حضور، شہزادے نے بڑے پراعتماد انداز میں کہا، میرا مجسمہ ویسا نہیں بنوائیے گا جیسا میں اس وقت ہوں۔ اس مجسمے کو اس طرح بنوائیے گا جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب بیٹا؟ بادشاہ خود حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری موجودہ کمزوری، خامی اور بے بسی کا آئینہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کی ایک روشن تصویر ہوگا۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا ہی نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر وہ اندر سے غمزدہ ہو گیا۔ تاہم بیٹی کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے سے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا ایک شاندار مجسمہ آویزاں کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروقار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنے ہوئے کندھے اور سیدھی کمر، گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسی تصویر کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا، شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں جھلکتا رہا۔ ہر روز شہزادہ صبح سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے خمیدہ کمر کے ساتھ جا پہنچتا، پرعزم نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا سا پش کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔ اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف
तकलीफ से लरस जाता। कई महीने और साल गुजरते रहे। शहजादे के आसपास मौजूद लोग हर रोज इसकी इस बेसमर मुशक्कत के गवाह बनते रहे। बहुत से लोगों ने इसकी हिम्मत तोड़ने की भरपूर कोशिश की। इसके अपने अजीज दोस्त, खानदान के अफराद, मशीरों, वजीरों, हकीमों, तबीबों ने बारी बारी इससे इस जानलेवा एक्सरसाइज से बाज रहने की ताकीद की, लेकिन शहजादे ने किसी एक की ना सुनी। वो अपनी धुन में पक्का था। इसकी आंखों में पनपने वाले ख्वाबों ने इससे आराम और सुकून छीन लिया था। इसकी ख्वाहिश शदीद और इरादा मजबूत था। लोगों के ताने, हौसला शिकनी, तंजिया कहकहे और तिरछी निगाहें इसके अज़म का रास्ता रोक नहीं पाई थी। ताहम ये भी सच है कि पिछले 5 सालों की कोशिश बज़ाहिर बेफायदा ही थी। शहजादा देखने में अभी भी एक झुकती कमर वाला ज़ईफ लेकिन उम्र में 16 साल का नौजवान बन चुका था। इस दौरान शहजादे के चेहरे पर किसी ने भी तकलीफ, बेबसी या बेवक्ती के तासरात नहीं देखे। ये अलग बात है कि तन्हाई के लम्हों में इसकी खुद कलामियाँ बड़ी दर्दनाक होती थी। या अल्लाह, मेरी तकदीर कब बदलेगी? आखिर मैं कब तक इस हाल में रहूँगा? मेरा सर क्यों झुका रहता है? मेरी तकलीफ़ें कब छूटेंगी? कब मेरी कोशिशों का समर मेरी जोली आन पड़ेगा? कई बार अपने अंदर का तफाद इसकी बड़ी सख्त किस्म की क्लास लेता। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों हर रोज़ दूसरों के सामने तमाशा बनते हो? यही हकीकत है। अपने वजूद को सच मान लो। अपनी माजूरी से मत भागो। सच से मुंह ना मोड़ो। तुम कैसे अपने ही हाथों खुद का मजाक उड़ा सकते हो? 5 साल तुमने ये सब करके देख लिया। अब बाज आ जाओ, सुधर जाओ और हालात से समझौता कर लो। अपने अंदर की ये आवाज़ें सुनकर इसका हौसला टूट जाता। इसका तकिया रात को आंसुओं से भर जाता, लेकिन ये आंसू अगले रोज़ इसके अज़म के रास्ते का नाकाबिले उबूर समंदर ना बन पाते। वो हर रोज़ एक नए वलवले से उठता, अपने मुजस्मे के सामने पहुंचकर पुरजोश लहजे में कहता, तुम मेरी असल हकीकत हो। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तुम मेरा कल हो। मेरी नज़र आज की तकलीफ दे जिंदगी पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों में जादुआ ख्वाबों पर है। इन ख्वाबों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है, मैं आज के सच को नहीं मानूंगा। मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है मैं जीत जाऊंगा। खुदा करे ऐसा ही हो। शहजादे को अपने पीछे खड़े बादशाह की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह ने शहजादे को बोसा दिया और कहा, मुझे तुम पर यकीन है, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। मैं आपकी सल्तनत और शान शौकत का मजाक बनने नहीं दूंगा। आपका बेटा दुश्मन की आंखों में सर उठा कर देखेगा। आपकी सल्तनत को एक बेऐब शहजादा मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादे ने अपने बाप को गले लगाने की कोशिश करते हुए कहा। हौसला अफजाई के जुमलों और तंजिया कहकहों के संगम में शहजादे के पुरअज़म दिन गुजरते रहे। वो हर रोज़ अपने आप को पिछले दिन की निस्बत थोड़ा सा और स्ट्रेच करता, ज़रा और तकलीफ सहता। खुद को सीधा खड़ा करने की मश्क इसकी बर्दाश्त की आखिरी हदों का इम्तिहान होती। कई बार वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से बेहोश होकर गिर जाता। आज के बाद तो तुम्हें इस ख्याल को दिल से निकाल ही देना चाहिए। होश में आने के बाद पहले लम्हे में हकीम साहब ने इसे नसीहत की। हम सब भी यही चाहते हैं शहजादा हजूर, लेकिन मान लीजिए ये मुमकिन नहीं है। शाही हकीम साहब अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि शहजादे का ज़ाती हकीम, इसका अपना मुजस्मा, उसे हौसले और हिम्मत के इतने इंजेक्शन लगा चुका था कि अब इस तरह की दवाओं का इस पर कोई असर होने वाला नहीं था। इसे अपने ही मुजस्मे से हिम्मत मिलती। अपनी पुरवकार जिंदगी का तस्वुर इसे हर लम्हे अपनी तरफ बुलाता था, खींचता था, पुकारता था, लुभाता था।
चंद साल और गुजर गए लेकिन कोई मौजज़ा ना हुआ, कोई बड़ी तब्दीली ना आई। लेकिन शहजादे के अंदर से इल्म था कि छोटी छोटी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। वो दर्द जिसे वो अपनी हद समझता था, इसे शहजादा बहुत पीछे छोड़ आया था। अब हद से कहीं ज़्यादा स्ट्रेच करने के बावजूद इसे कोई ख़ास दर्द महसूस नहीं होता था। वो जानता था कि इसका जिस्म अब आहिस्ता आहिस्ता इसका साथ देने लगा है। वो अपने अंदर के इन एहसासात को समझता था। इसे यकीन था कि इसकी ज़ात की ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ एक दिन बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखेमा साबित होंगी। ये तब्दीलियाँ पैदा करने में इसने जो दुख सहे हैं, इसका मदावा हो के रहेगा, मौजज़ा हो के रहेगा। और फिर एक दिन मौजज़ा हो ही गया। अपनी 21वीं सालगिरह की सुबह इसकी मुशक्क़तें, मेहनतें और आरज़ुएं रंग ले आई थी। साल से खमीदा कमर, कमज़ोर और नईफ दिखने वाला शहजादा अपने सामने वाले 6 फुट के दराज कद मुजस्मे के रूबरू खड़ा था। इसकी आंखों में मुस्कुराहट, चेहरे पर वकार, जिस्म में ताकत, माथे पर अज़म को हकीकत में बदलने का एतमाद और सबसे बढ़कर उठे हुए सर में करोड़ों लोगों के लिए सर उठाकर जीने का पैगाम था। इनके ख्वाबों में बसने वाले इंसान आज सचमुच इसके मुजस्मे के सामने हकीकत बन कर खड़ा था। सब हैरान थे, सब इसे मौजज़ा ही समझ रहे थे। इसका मजाक उड़ाने वाले भी इसे अनहोनी ही कह रहे थे। सच में तो ये मौजज़ा ही था, इसलिए शहजादा सजदारेज हुआ नजर आ रहा था। वो खालिक हकीकी का शुक्रगुजार था। बादशाह बेहद खुश था और वो जानता था कि ये मौजज़ा दरअसल इसके बेटे की अनथक मेहनत और बेपनाह अज़म का सिला था। खुदा ने इसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया था। सब लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, लेकिन रब के हाथ तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, अब ज़रा आप बताइए, आपका मुजस्मा किधर है? आप खुद को आने वाले सालों में कैसा देखना चाहते हैं? आपका अपनी ज़ात के बारे में क्या तस्वर है? क्या आपने अपने जहन की खिड़की से बाहर खुलते किसी बाग में अपने मुस्तकबिल का कोई आईना सजाया है, जिसमें मुजस्मे की सूरत में वो शख्स नजर आता है जो आप बनना चाहते हैं? क्या इर्द गिर्द की हौसला शिकन आवाज़ों के शोर में कहीं से इस यकीन की सदा आपके कानों से टकराती है कि शाबाश, तुम कर सकते हो? अपने कल के बारे में सोचकर आपके दिमाग में किस किस्म के अल्फाज, तस्वुरात और मनाजिर आते हैं? इन मनाजिर में आपकी कमर खमीदा है या सर उठा हुआ है? इन तस्वीरों में आप दूसरों को अपनी नाकामी की वजूहात की कहानी सुनाते पाए जा रहे हैं या दूसरों के लिए सर उठाकर जीने का अमली पैगाम बन चुके हैं?